ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਕਵਨ ਬਿਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀਐ, ਸਿਧ ਸਾਧਕ 33 ਕੋਰ, ਤਿਰ ਕੀਮ ਨ ਭਰੀਐ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦ ਸ਼ੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ, ਅਗਾਹੋ ਗਹਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਜਿਹ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਸੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰ ਬਾਸ ਨ ਭਰਿਆਰੇ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮਾਜ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ, ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਸਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ, ਪੁਰਾਣ ਸਨ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਧਰਮ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਪੂਜਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ, ਅਰਚਾ ਦੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁ ਵਾਟੀ ਜਗ ਚੱਲੀਆਂ ਜਬ ਹੀ ਪਏ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝਗੜੇ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੱਕਾ ਕਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਏ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਦ-ਵਾਦ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਦ-ਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਿ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਣੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਂਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ। ਓਂਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਕਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਜੰਮਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਹੀ ਪਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਭੂਤਨੇ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਨੇ ਭਟਕਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ,
ये लोग बेताल भूतने बन चुके हैं। गुरु अर्जन साहब जी का एक वचन है कि बसंत स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हार गोपाले नानक ते प्राणी उद्यान प्रमणे, कौतुक कोड़ तपास्या चितन आव सुनाओ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ। जिथे सतगुरु जी ने गल कही है कि जिथे कोई मर्जी वधिया थां ते दुनिया का जेतू है, वधिया मुल्खां च रहिंदा होए, चंगे रंग तमाशे होण, ओहदे कोल सब कुछ होवे, पर वो ते अंदरों उजाड़ विच है। नानक ते हर बिसर ते प्रेत है, जेड़े रब नूं भुला दिंदे ने, रब नालों टुर जांदे ने, ते प्रेत दी न्याई है। वो प्रेत ने दरअसल, प्रेत दा अर्थ हुंदा गुजरिया होया, वो ते अंदरों मर चुके ने वो लोग। गुरु नानक साहब जी ने नजर मारी कि मनुखता जिहड़ी है वो भूतने बन चुकी है। देखो ना, मनुख मनुख नूं मारे, हालांकि मनुख मनुख नूं नहीं मारना चाहिए। तुसीं कदी पंछियां दीयां भी लड़ाइयां देखियां ने, पंछियां ने कदी बरादरियां देखियां ने। जे किते पंछियां नूं भी आ दुनियावी जो धर्म की गल हुंदी, किते ज्ञान हुंदा ते आकाश चों खून ही डिगदा नजर आया करना सी रोज। उन्होंने भी धर्म के नां ते दंगे ही करिया करने सी, मारिया करना सी। इन्ना शुक्र है कि उन्होंने पता ही नहीं है धर्म का, जिहो जिहा धर्म दे दित्या गया लोगों को। गुरु नानक साहब जी ने मनुखता की इस असमानता नूं दूर करने लई, नाम बराबरता नूं दूर करने लई सानू गुरबाणी की दात दी है। गुरबाणी एक तो शुरू होंदी है, गुरबाणी एक दे नाल जोड़दी है। गुरबाणी कहंदी तुसी काले हो, चिट्टे हो, तुसी गोरे हो, तुसी उच्चे हो, तुसी लम्मे हो, तुसी मसीत विच जांदे हो, तुसी मंदिर विच जांदे हो, तुसी किते भी जांदे हो, तीर्थां ते जांदे हो, हज करदे हो, जो कुछ भी करदे करो, लेकिन जुड़ो ते एक दे नाल, गल ते एक दी करो। तुसी परमात्मा सिर्फ एक है, बाकी मनुख ने अपने बनाए हुए ने परमात्मा। रब दे नां ते बहुत कुछ बनाया है। किसी ने रब जिहड़ा चूहे ते चढ़ाया है, किसी ने रब बल ते चढ़ाया है, किसी ने रब पत्थर का बनाया है, किसी ने रब कागज का बनाया है। आपो अपनी श्रद्धा अनुसार रब जिहड़े ने आपो अपनी मर्जी अनुसार लोगों ने बनाए हुए ने। पर गुरबाणी कहंदी साहिब मेरा एको है भाई एको है। परमात्मा सिर्फ एक है। गुरमत ने इसे करके एक तो गल शुरू की है। साडा गवांढी मत जिहड़ा हिंदू मत है ना, वो अनेकता की पूजा करता है, अनेकता की वखरे वखरे उन्होंने ढंग ने, पूजा के तरीके ने, ये उन्होंने आस्था है, मुबारक है उन्होंने। लेकिन गुरमत ने केवल एक दी गल की है। वो अनेकता की गल करके एक वल वधना चाहता है, लेकिन गुरबाणी कहती एक दी गल करो तो अनेकता नाल प्यार करो, किसी नाल नफरत ना करो। गल एक दी करो पर समुची मानवता चो एक नू देखो। सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सब मैं चानन होए। ये गुरु नानक साहब जी के घर का फलसफा है कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। समुची मानवता एक ही जोत तो बनी हुई है, एक ही प्रकाश तो बनी हुई है। समुची मानवता विच एक परमात्मा बैठा हुआ है। समुची मानवता एक परमात्मा की बनाई हुई है। और सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी के बचन किन्ने इनकलाबी ने। हिंदू तुरुक कोई राफ जी इमाम साफी, मानस की जात सब है एको पहचान को। मनुख होने के नाते असी सारे एक हाँ, कोई मुसलमान होए कुछ होए, लेकिन ऐजे मनुख असी सारे एक हाँ। सारियां च खून इको जिहा है, सारियां दा शरीर पंजां तत्तां तो बनिया होया है। फिर यह कहना कि ऐ कोई नीवा है, ऐ कोई उच्चा है, ऐ कोई बगाना है, गुरबाणी कहती एक होर अज्ञानता है। धर्म के नाम से अज्ञानता पसरी हुई है। इस करके गुरबाणी ने कहा कल कालख बेताल, ये दुनिया के लोग कलयुग की कालख के नाल भूतने बने बैठे ने। बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल। जिन्हों ने तो बीज बीजे है, देखो जिमीदार जां असी कोई भी फसल बीजते हाँ, वो बीज जे बनया होए तो तां ही उगदा है ना। जे पहला ही उसकी दाल बनाई हुई है, वो टोटे किते, वो तो नहीं उगेगा। बीओ बीज पत लै गए। जे साडे मन अंदर दुबदा है, रब दे नां ते भी दवैत है, रब नूं भी असीं कई रूपां च मनने, ਉਹ ਉਹਦਾ ਘਰ है, ਉਹ रब दा घर है, ये साडे रब दा घर है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। सिखां 'ਚ भी तो यही कुछ है ना, उस गुरुद्वारे नहीं जाना, उस गुरुद्वारे जाना। सिख भी किसी नालों पिछे नहीं रह गए। सिखां दे भी गुरुद्वारे वंडे गए, बरादरियां दे नाम ते वंडे गए, जातां दे नाम ते वंडे गए, संतां दे नाम ते वंडे गए, शहीदां दे नाम ते वंड ले कि शायद उत्थे शहीद को बहुत ही कृपा करते हैं, इत्थे घट हुंदी है। ये अज्ञानता है, इदों वध की हो सकता है कि उत्थे बाबा दीप सिंह जी के नाम से गुरुद्वारा बहुत ही कृपा होनी, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी ने इत्थे कृपा नहीं होनी। ये सिर्फ तो सिर्फ जिहड़ी है
साडी एक सच नालों टुटे होण करके ये गल हो रही है। जे ते असीं सच की गल सुननी, एक नाल जुड़ना है, वो तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिथे भी प्रकाशमान होणगे वो सानू गल दसणगे। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का मुख मकसद केवल तां केवल मनुखता च एकता पैदा करना है, एक दे नाल जोड़ना है। और गुरु साहिब जी ने इस समुची मानवता च एकता समानता पैदा करने के लिए सानू गुरबाणी की दात बख्शिश की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी समुची मानवता की गल करती है, समुची मानवता के दुखों को दूर करने की गल करती है। तुसीं जद गुरबाणी पढ़ोगे, सतगुरु जी ने किते कोई वितकरे की गल नहीं की, ब्राह्मण नूं भी उपदेश दिता है, मुसलमान की भी गल की है, योगी की भी गल की है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी च एक हल वाहण वाले की भी गल की है, दुकान वाले की भी गल की है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने व्यापार करने वाले की गल की, नौकरी करने वाले की गल की है, बचपन की गल की है, जवानी की गल की है, बिरध अवस्था की गल की, जन्म तो पहला मरण तो बाद। और इत्थे बस नहीं, समाज की गल की, राजनीति की गल की, आर्थिक ढांचे की गल की। धर्म ये नहीं है कि मैं सिर्फ खास लिबास पा के वखरे होकर बैठ जा तो मैं धर्मी बन जावांगा। धर्म की परिभाषा जिहड़ी है वो समुची मानवता दे नाल जुड़ी हुई है, समाज दे नाल जुड़ी हुई है। इस करके सतगुरु जी ने समाज की गल, अर्थव्यवस्था की गल, राजनीति की गल, जब तुसीं गुरबाणी पढ़ोगे, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस वेले दे राजतंत्र दीयां जो गल्लां सन वो सारियां चर्चा कीतियां ने। ये जिहड़ा श्लोक आप जी दे नाल मैं साझा कीता अज शनिवार चों, इदों अगले श्लोक अंदर ही सतगुरु जी ने राजतंत्र दे पाज नूं उघेड़िया। लब पाप दोए राजा महता, कूड़ हुआ सिकदार, काम निवसर पुछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान भी होनी, पाए भरे मुरदार। ये राजतंत्र है, उस वेले ते समाज का नक्शा है। लब पाप दोए राजा महता, लोभी राजे ने, पापी उन्हां दे नाल उन्हां दे वजीर बने बैठे ने। कूड़ हुआ सिकदार, झूठ अगे चौधरी बनिया फिरदा है। काम नेवसर पुछिए, काम उन्हां दा अगे डिप्टी बनिया फिरदा, उन्होंने पुछिया जाता है। बह बह करे विचार, ये मंडली बैठ बैठ के विचारां करदी है लोकां दे लई। अंधी रैयत ज्ञान भी होनी, अगे जिहड़ी रैयत पब्लिक है वो बेचारी अज्ञान तो हीणी अन्नी है, वो इन्हां दे जुल्म नूं सहार रही है। अज भी उही कुछ है जो गुरबाणी ने राजतंत्र का नक्शा उदों दिता है। सो मैं कह रहा सा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी ने इस मनुखी समाज च भी समानता पैदा की, जिथे सतगुरु जी ने एक परमात्मा की गल करके सानू समुची मानवता नूं एक विचारधारा दी कि नरोल एक परमात्मा के प्यार में जुड़ो। जुड़ो किथे भी जाके, गुरबाणी का बचन जगत जलंदर रख लै, अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे तितै लेहो उबार। वाहिगुरू जी जिहड़ा जगत दुखां की अग सड़ रहा है ना, ईरखा की अग, नफरत की अग सड़ रहा है, ये सड़ते बलदे जगत नूं बचा लिया जिवें बचाया जाता है। जिस भी द्वारे राही को मंदिर च जाके एक नाल जुड़े मुबारक है, को मसीत में जाके एक दी गल करे मुबारक है। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के किन्ने उदार बचन ने, जिथे सतगुरु जी ने गल की, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई आलाए, कारण करण करीम, कृपा तारहीम। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओडे नील, कोई सफेद, कोई नावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर ने आए। सारियां गल्लां दी, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बांसे सुर, कोई बिस्त, कोई सुर हिंदू, सारी चर्चा करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक गल की, कारण करण करीम। समुची मानवता नूं बनाउण वाला एक परमात्मा है, ते जिस मनुख ने उस परमात्मा दे इस भेत नूं समझ लिया, हुक्म नूं समझ लिया, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। परमात्मा दे भेत नूं उन्हें जाने है जिन्हें रबी सिस्टम नूं हुक्म नूं समझ लिया। रब दा जो हुक्म है, रब दा जो कानून है, रब दी जो रजा है, जिन्हें उन्होंने जान लिया, सतगुरु जी कहने वो परमात्मा नूं जान सकदा है। केवल तां केवल धार्मिक भेख जां धार्मिक दिखावे दे कर्म करके कोई रब नाल नहीं जुड़ सकदा। जिथे सतगुरु जी ने गल एक दी कीती कि परमात्मा एक है, उत्थे समुची मानवता नूं उस परमात्मा दी अंश कह के, उस परमात्मा दे बच्चे कह के समुची मानवता विच प्यार पैदा करने की गल कीती। उत्थे समुची मानवता नूं धर्म कोई होए, विचारधारा एक दिती कि परमात्मा एक है। यही कारण है कि जे मुसलमान नूं सतगुरु जी ज्ञान दिंदे ओदी बोली च, कि मुसलमान भी सतगुरु जी नूं अपना आगू मानते ने, बाबा नानक जी कह के, हजरत बाबा नानक जी कह के सत्कार दिंदे ने। जे सतगुरु जी ने विद्वान पंडितां कोल जाके गल कीती
उन्होंने एक ईश्वर की गल दसी, परमात्मा की गल की। बहुत सारे विद्वान पंडित जां होर इस मत ते चलण वाले गुरु नानक साहब जी नूं नानक देव जी कहते हैं। ये नानक देव हिंदू वीरां ने नाम रखिया सतगुरु जी का। गुरु नानक साहब जी का नाम नानक है, सिख उन्होंने गुरु नानक कह के सत्कारते हैं, हिंदू वीर नानक देव जी कह के बुलाते हैं, मुसलमान सतगुरु जी को हजरत बाबा नानक जी कहते हैं, जोगी सतगुरु जी को नानक नाथ कहते हैं, तिब्बती सतगुरु जी को नानक लांभा कहते। आपो अपनी बोली च गुरु नानक साहब जी को प्यार दिता है लोगों ने। वो इस करके गुरु नानक साहब जी ने गल एक दी की है। जे सतगुरु जी मक्के जाते हैं, जे सतगुरु जी हरिद्वार जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते, किते भी जाते हैं, नरोल सतगुरु जी एक परमात्मा की वाहिगुरु की गल करते हैं तो लोग सतगुरु जी इस गल को मनते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिथे एक विचारधारा दी, उथे सतगुरु जी ने इस धरती ते, इस प्लैनेट ते ये मनुखी समाज समानता पैदा होवे, उहदे लई सानूं बड़ियां वडमुलियां दातां दित्तियां, जिहदे विच सब तो महान दात है गुरबाणी। गुरबाणी का मुख मकसद समुची मानवता का उद्धार है। गुरबाणी कोई एक व्यक्ति लिए नहीं है, गुरबाणी कोई एक खिते के लोगों लिए नहीं है, गुरबाणी कोई एक बरादरी के लोगों की नहीं है कि असीं इस घर जम्मे तो असीं बाणी पढ़ सकते, होर किसी नूं पढ़ नहीं देनी। जदों ये सोच आउंदी है ना कि आपां ਉਹ किसी ਨੂੰ बाणी नहीं पढ़न देनी, जो उथों बाणी दीयां पोथियां ले आवे, औरंगजेब वाली सोच है, होर कोई नहीं हो सकती। गुरबाणी समुची मानवता की विरासत और गुरबाणी ने समुची मानवता के उधार की गल की है। चाहिए तो यह है कि असीं समुची मानव तक गुरबाणी नूं उन्हां दी बोली च पहुँचाईए, लोकां तक गुरबाणी की पहुँच करिए। और गुरबाणी दे विच गल भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हर वर्ग की की, समुची मानवता की की है। इस तो इलावा जिथे सतगुरु जी ने सानू गुरबाणी दी है, सतगुरु जी ने उत्थे अपनी जिंदगी च वो कारज करके समानता बनाने की गल की। जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समाज जड़ियां वंडियां पईयां सन, उस वेले किसी नूं ब्राह्मण, किसी नूं खत्री, किसी नूं वैस, किसी नूं शूद्र कह के, जां मुसलमान कह के, जां किसी नूं नीवां कह के, उच्चा कह के वखरेवे खड़े किए हुए सन। कुछ चलाक धार्मिक आगुआं वालों, कुछ उस वेले राजनीतिक आगुआं वालों, क्योंकि ये दो श्रेणियां ने जिहड़ियां हमेशा मानव जाति च हर थां ते किसी ना किसी रूप च मनुखी समाज नूं पाड़ के रखना चाहुंदियां ने। मानवता च एकता उन्हां नूं चंगी नहीं लगदी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ। वो कितों शुरू होंगी? जो मानसिक गुलामी शुरू होंगी है। जो मैं किसी कर्म कांड च पै जा, रब ते भरोसा नहीं, मैनू ये भरोसा है कि किसी थां ते ही जाके बरकत मिलनी है, मैनू ये भरोसा है कि किसी खास देनी अखां मीटियां रब मिलनी है, मैनू ये भरोसा बनया कि किसी खास थां ते नातियां गल बननी है, जां किसी खास मनुख कोल खास समय ते गल बननी। ये मैं मानसिक तौर पर गुलाम हो गया, मेरी वो आज़ादी खत्म हो गई जिहड़ी रब ने मैनू दित्ती सी। ते बाबा कबीर साहब जी ने तो बड़े स्पष्ट लफ्ज़ां च कहा है कि इस मानवता नूं गुलाम बनाउण दे लई कबीर कागद की ओ बरी मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। कागद की ओ बरी दा हुंदा कैद कोठड़ी। किस चलाक लोगां ने जिन्हां कागजां ते कर्म कांड नहीं लिखे, अपनियां दुकानां ते वेखदे आ, शब्द पुड़दे आ, मंग पूरी हो जी है, मंग तो तुहाडा प्रेमी वस च आ जाएगा, ऐ सवरो तुहाडा कारज रास हो जाएगा। ये है गुलाम बनाउण वालियां गल्लां। गुरबाणी दा हर लफ्ज़ सानूं ज्ञान दिंदा है, किहड़ा शब्द जिहड़ा वो घट है। ये सिर्फ जिहड़े कुछ अपने स्वार्थ दे लई, कुछ अपनियां दुकानां चलाउण लई, कुछ पैसे कमाउण लई इहो जी कोई ना कोई गल कढ दिंदे ने। बाबा कबीर साहब जी कहंदे ये कागजां दी कोठड़ी जिहड़ी है ना, कागज की ओ बरी मस के कर्म कपाट, जिन्ना स्याही दे नाले कुछ लिखिया है ना, वो समझो कपाट ने, दरवाजे ने मनुख दी सुरत नूं गुलाम बनाउण दे लई। ते गुलाम बना के पाहन बोरी पृथ्वी। पाहन का अर्थ है कि मनुख पत्थर की पूजा च लग गया, पशुओं की पूजा लग गया, तो मनुख अपने असली जिंदगी के मकसद तो लांभे हो गए, परमात्मा वाले पासे तो हट गया। तो चलाक आगुआ ने इधर लगा के पंडित पाड़ी बाट, फिर रस्ते च लुटना शुरू करता धर्म के नां ते। देखो ये धर्म है कोई कि तुसीं यह पूजा करोगे इन्ने पैसे लगने ने, यह पाठ कराओगे तो यह पैसे लगने ने, इन्ने ज्यादा दे दो तो जल्दी पाठ हो जाएगा, इन्ने ज्यादा दे दो तुसीं जल्दी अगे चल जाओ। धर्म है कोई? ਇਹਦਾ मतलब धर्म भी पैसे के नाल विकना शुरू हो गया।
पंडित पाड़ी बाट। चलाक लोगों ने मनुखता नूं रस्ते च लुटना शुरू करता, लोगों की दसां नवां दी किरत नूं लुटना शुरू कर दिता। गुरु नानक साहब जी ने गुरबाणी दिती, निरोल ज्ञान, निरोल मनुख नूं वहिमां भरमां तो, पखंड तो, कर्मकांड तो, अंध विश्वास तो, भरम भटकना तो मुक्त। जपो तां एको नामा, अवर निराफल कामा। मनुखी समाज विच समानता पैदा करने लई सतगुरु जी ने गुरबाणी दिती ते ओ गुरबाणी ये वखरेवियां दियां धज्जियां उडाउंदी है। सतगुरु जी दे ये बचन ने, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं आत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। सतगुरु जी कहंदे जिन्हां नूं तुसीं नीच कहंदे हो, भाई मैं ते उन्हां नीचां दे कोल ही बैठ के आनंद माणदा, उन्हां दे मुकाबले ते वड्डे की कर सकदे ने। जो प्यार तुहानूं एक गरीब बंदा देवेगा, जो प्यार तुहानूं एक आम किरती बंदा देगा, वो राजगद्दी ते बैठा तो नहीं देवेगा, उत्थों हंकार मिल सकता है। इस करके सतगुरु जी ने कहा वड्डियां सो क्या रीस, वड्डियां ने की उन्हां दी बराबरता करनी, की प्यार देना। जो कुर्बानी मुल्क दे लिए एक किरती कर सकता है, कोई अज तक मिनिस्टर मरिया बार्डर ते जाके, कोई अज तक वड्डा विद्वान गया बार्डर ते, किरती लोग बार्डर ते जाके अपने मुल्क की खातर शहादतां दिंदे ने, अपने मुल्क की खातर कुर्बानियां करते हैं, मुल्क की आजादी लई किरतियां ने शहादतां दित्तियां ने। कोई उन्हां लोगों ने नहीं जिहड़े कहंदे सी बहुत वड्डे धार्मिक हां जां बहुत वड्डे सी देश दे आगू, कोई दसो तुसीं, वो तो बचे ही रहिंदे ने। इस करके सतगुरु जी ने वड्डियां सो क्या रीस, इन्हां वड्डियां दे नाल उन्हां दा की मुकाबला असीं कर सकदे, कदे नहीं कर सकदे, क्योंकि वो महान ने। और गुरु नानक साहब जी ने कल्ला किया नहीं है, ये करके दिखाया। गुरु नानक साहब जी जो घरों तुरदे ने, सतगुरु जी ने पता सी कि यह बड़ा तगड़ा एक कम है, कोई मामूली कम नहीं है। लोगों के विचों नाम बराबरता नूं दूर करना बड़ा औखा कम है। बाबा कबीर साहब जी ने गल शुरू की, उन्होंने भी संगला जगड़ दिता। बाबा कबीर साहब जी ने यह कहा सी, कौरे पंडित बामण कब के होए, बामण कह के जन्म मत खोए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूत। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदे सब उत्पत्ति। ये तो सारी दुनिया ब्रह्म तो पैदा हुई है, वाहिगुरु तो पैदा हुई है, सारी दुनिया ही ब्राह्मण है। बाकी तुसी ब्राह्मण कदों दे बन गए भाई, तुहाडे च किहड़ा दुध भरिया ते साडे च खून भरिया, तुसी किहड़ा आकाश तो डिगे हो ते असीं माता पिता दे रहे इस धरती ते आए हैं, तुहाडे च ते साडे च की फर्क है। बाबा कबीर साहब जी कहंदे ब्राह्मण कोई उदों बनदा है जदों ब्रह्म विच लिवलीन हो जांदा है, जदों उहनूं सारे पासे ब्राह्मण ब्रह्म ही नजर आउंदा है। जो देख ले सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जदों सारियां चो गोबिंद नूं देख ले उदों को ब्राह्मण बनदा है। ब्राह्मण है, सत्कारयोग है, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत के। जेड़ा ब्राह्मण सारियां चो ब्रह्म नूं देख ले, सतगुरु जी कहंदे ओ ब्राह्मण तां पूज नहीं के पाई, ब्राह्मण माड़ा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण दे नाम ते ये गल कहनी कि ऐ नीवा है, ऐ उच्चा है, बाबा कबीर साहब जी कहंदे ये ब्राह्मण दा कर्म नहीं है। ब्राह्मण तो सारियां चो ब्रह्म नूं देखदा है, सारियां चो एक परमात्मा नूं देखदा है। गुरु नानक साहब जी घरों तुरे इस कारज नूं सिरे चाढ़न दे लई सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने अपने नाल लै लिया भाई मरदाना साहब जी नूं। मरदाना जी पिंड दे मरासी सन, रबाबी सन, और दुनिया कहंदी सी ते नीवें जात है, क्योंकि गरीब वर्ग चों सी, लोकां ने नीवां किया। ते बाबा नानक जी आए नीवियां नूं उच्चे करन दे लई सी। बाबा रविदास साहब जी ने गल की ना, नीचा हूं ऊंच करे मेरा गोबिंद, कबहू काहूं ते ना डरै। गुरु नानक साहब जी ने उस गोबिंद वर्गी परमात्मा वर्गी गल की। हर वो चीज जिहड़ी नीवी सी उन्होंने उच्चियां करता गुरु नानक साहब जी महाराज ने। जिन्हां लोकां नूं समाज कहा जांदा तुसीं नीवें हो, तुहानूं धर्म दा अधिकार नहीं है, गुरु नानक साहब जी कहंदे ये मरदाना है। दुनिया पुछदी तुसीं ते हो गए नानक, ये कौन है नाल? कहंदे भाई मरदाना मेरा भरा। भाई का अर्थ मेरा भरा है मरदाना। दुनिया सतगुरु जी कहंदी ते कुरैया है, एक पिंड दे रबाबी नूं कहंदा मेरा भरा। सतगुरु जी कहंदे भाई मरदाना। बाबा नानक जी इत्थे ही रुकदे नहीं है, सब तो पहला अपनी उदासी जांदे भाई लालो जी दे घर ने। भाई लालो जी किरती ने, तरखाना काम करते ने, दस्तकारी का काम करते ने, और उस इलाके का हाकम जिहड़ा अपने आप नूं वड्डे घराणे चों समझदा सी, उहनूं बड़ा गुस्सा जागिया। उन्हें गुरु नानक साहब जी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया कि गुरु नानक साहब जी ने कहा भाई लालो है, मेरा भरा है भाई लालो। अज सत्कार हो जो असीं उहनूं बाबा जी कहीए, कुछ कहीए, चंगी गल है, पर भाई लफ्ज गुरु नानक साहब जी ने बख्शिया।
भाई लालो मेरा भरा है, भाई मरदाना मेरा भरा है। गुरु नानक साहब जी ने फिर चले ते एक संगत कायम कर दी। संगत, ये जिस संगत में तुसी बैठे हो, ये बहुत वड्डी दात है, बड़ी वड्डी संस्था गुरु नानक साहब जी ने दी है। इस संगत ने समाज की काया कलब कर दी। ये संगत वो स्थान है जिथे अमीर गरीब, पढ़िया ना पढ़िया, उच्चा नीवा, हर कोई मनुख आके बराबर बैठ सकता है। बराबरता का अधिकार सिर्फ संगत विच है। इस संगत की बड़ी वड्डी महानता है, इसकी अहमियत नूं समझना चाहिए। बराबरता का अधिकार, इत्थे कोई रब च लिवलीन है, कोई नहीं भी लिवलीन, कोई बहुत बाणी पढ़ता है, कोई घट भी पढ़ने वाला है, नहीं भी पढ़ने वाला है, कोई बहुत कुलीन वर्ग चो अपने आप को वड्डा कहता होएगा कि चंगे घराने चो, कोई माड़े घराने चो भी हो सकता है। इस तरीके नाल वखरे वखरे ख्यालों के लोग एक थां ते इकट्ठे होंदे, इन सतगुरु जी ने कहता संगत बराबरता की गल। और इत्थे फिर सतगुरु जी ने दृष्टि भी सारियां ते बराबर की, विहार भी सारियां नाल बराबर। इत्थे खत्री ब्राह्मण शूद्र वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा। इत्थे वखरा वखरा नहीं है कि तुसी बहुते पैसे दोगे तुहानूं बहुता ज्ञान दे देवांगे ते दूजे नूं घट दिता जाएगा, जिवें समाज विच आम चलदा ही है, धर्मां दी दुनिया च भी चलदा है। लेकिन इत्थे बराबर दी गल है। इत्थे जिहड़ा गुरु की हजूरी च आ गया उहनूं बराबर बैठण लई थां मिलदी है। जिहड़ा गुरु की हजूरी च आ गया उहनूं बराबर दा ज्ञान दिता जांदा है। जिहड़ा गुरु की हजूरी च आ गया उहनूं तां आपां कहने गुरु रूप साध संगत होते गुरु दा रूप बन जांदा है। गुरु सारियां दे उपर बराबर दी दृष्टि करदा है, गुरु सारियां दे उपर बराबर दी मेहर करदा है। इस संगत दी संस्था सानूं साडे सतगुरु जी ने दित्ती सी समाजिक बराबरता दे लई। साडे विच ओ वखरेवें ओ दूर हो जाण, ओ सारियां गल्लां जिहड़ियां ऊच नीच दे भेद भाव ने ओ खत्म हो जाण। बराबरता दा एहसास पैदा होए कि असीं मनुख हां, मनुख होण दे नाते असीं सारे एक हाँ। और ये प्यार साडे च पैदा होए। इस संगत ने प्यार पैदा किया, संगत ने एक स्वैमान पैदा किया लोकां च। क्योंकि धर्म के नां ते लोकां दे अंदर एक हीण भावना भरी हुई सी, तुसीं ते नीवें हो, तुसीं तो शूद्र हो, तुहानूं ते धर्म का अधिकार नहीं। गुरबाणी च वो घटनावां अंकित ने। बाबा नामदेव जी ने उस समाज में जो हड्ड बीती लिख दी, हस्त खेल तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, इंद्री जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। और होर बड़ियां बाबा रविदास साहब जी ने उदाहरण दित्तियां ने, कबीर साहब जी ने उदाहरण दित्तियां ने। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने वो सारी जिहड़ी द्वैत सी उहनूं मेट के एकता की गल कीती। एक रब दे नाल जुड़ो, एक थां ते बैठ के एक विचारधारा वाले बनो। समुची मानवता नूं तुसीं इंसान मनुख समझो। कोई वखरे वर्ग का हो सकता है, कोई वखरे इलाके का हो सकता है, वखरी बोली का हो सकता है। तो रब ने न्यारे न्यारे भेस को देश को भेस को प्रभाव है। सतगुरु जी के बचन पढ़ते, एक के नैन एक के कान एक के देह एक के भान, आब खाक सातो आतस को रलाओ है। इको जिहियां अखां ने, सब कुछ इको जिहा है, पंजां तत्तां तो इको जिहा शरीर बने। ते बाकी देहोरा मसीत सोई पूजा वो नमाज होई। कोई देहरे जाता है, कोई मसीह जाता है, कोई पूजा करता नमाज पढ़ता है, तो रब की गल करते ना, करे रब की गल। गुरमत ने किते नमाज वाले नूं, किसी मसीत वाले नूं जां किसी देहरे वाले नूं माड़ा नहीं किया। यही गुरु नानक साहब जी की वडियाई सी कि गुरु नानक साहब जी ने कहा कि जुड़ो एक परमात्मा दे नाल, एक परमात्मा दे प्यार जुड़ो। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी वार वार कहती, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। भाई जिंदगी अंदर एक परमात्मा के प्यार में जुड़ो। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, केवल एक परमात्मा के प्यार में जुड़ो। गुरु नानक साहब जी ने जिथे मनुखता विच एकता बराबरता पैदा करने लिए गुरबाणी की दात दी, सानू आ सत संगत की दात दी, उत्थे गुरु साहिबान ने सानू पंगत की दात दी। देखो रोटी पानी तो आप घर च भी खाने, वही गुरु का बख्शिया होया। लेकिन संगत विच बैठ के खाने का अर्थ है बराबरता। इत्थे कोई उच्चा नहीं है, कोई नीवा नहीं है, जो सारिਆਂ च वरत रहा वो बराबर ही वरतेगा। ये गुरु नानक साहब जी के बहुत वड्डे परोपकार ने। गल असी गुरबाणी तो शुरू की सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो गुरबाणी इस मनुखी सभ्यता नूं बख्शिश की है, इसका मुख मकसद इस मनुखी समाज में एकता पैदा करना है। गुरु नानक साहब जी महाराज का पावन पवित्र दिहाड़ा प्रकाश पुरब गुरु की संगतां ने मनाउणा है थां थां ते।
सानू सतगुरु जी के पुरब मनाउंदियां ये गल चेते रखनी चाहिए है, याद करनी चाहिए है कि गुरु नानक साहब जी सानू एक करन लई आए सन। सानू एक संगत दिती है, सानू इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार, इक्को गुरबाणी की दात दिती है। सानू इक्को ही संगत दिती है, सानू इक्को ग्रंथ दिता है, सानू इक्को ही पंथ दिता है। फिर भी असी देखते हैं कि गुरबाणी पढ़दे भी साडे च अनेकता बनी हुई है। किते बाणी दे नां ते असी वंडे बैठे हैं, बड़े चलाक तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ सानू ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ विचारधारा ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ है। जे असी दुनियावी इन्हां लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ के सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ਨੂੰ पढ़ीए, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ अपना गुरु मान लीए, साडे च अपने आप एकता पैदा हो जाएगी। इस करके सतगुरु जी ने कहा सी बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्यों ज्यों गुरबाणी नाल जुड़ांगे त्यों त्यों सानू परम गति की प्राप्ति होएगी। गुरु के बचन सन के सुन अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बूझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। गुरु की जो अमृत बाणी इनू सुन सुन के परम गति मिलती है। मनुख के अंदरों द्वैत मिटती है, मनुख के अंदरों ईर्खा मिटती है, मनुख के अंदरों होर अनेक तरह के अवगुण मिलते हैं। इवें कह लो कि गुरबाणी पढ़दे मनुख जिहड़ा है उस परमात्मा नाल जिहदी सिफत सलाह गुरबाणी च कीती हुई है उहदे प्यार विच ही विलीन हो जाता है। गुरबाणी मनुख के अंदरों मैल कटदी है। गुरबाणी मनुख नूं निर्मल बना के, क्योंकि परमात्मा च अभेद होने लई जां जुड़न दे लई हिरदा निर्मल होना जरूरी है। जे जीओ मैले बाहरों निर्मल होए ते आपां बाहरों जो मर्जी करते रहिए, उहदे लई उह निर्मलता गुरबाणी बख्श करदी है। ज्यों ज्यों गुरबाणी पढ़ांगे परम गति नूं प्राप्त होवांगे। परम गति दा अर्थ है कि उच्ची अवस्था मिलेगी, सुरत साडी उच्ची उठदी जाएगी। सुरत नीवीं कदों हुंदी है? जदों सुरत विच चिंता होवे, जदों सुरत विच विकार होण, अवगुण होण, बुराइयां होण, उदों साडी सुरत नीवीं जांदी है। पर ज्यों ज्यों सुरत हौली हुंदी जाएगी, बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी हरवे हरवे तिर गए, डूबे जिन सिर भार। जिहड़े हौले रहणगे वो तर जाणगे, जिन्हां ने भार चुक्या वो डुब जाणगे। सुरत नूं हौलियां करन दा इक्को तरीका है गुरु की बाणी। ये गुरु की बाणी है जिहड़ी साडी सुरत विचों चिंतावां नूं दूर करन दे लई इह प्रेरणा करदी है कि नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है। चिंता करनी मनुख की ड्यूटी नहीं है। मनुख की ड्यूटी तो जिम्मेवारी निभाना है, रिस्पोंसिबल बनना है। ये रिस्पोंसिबिलिटी गुरबाणी दिंदी है। लेकिन मनुख ने रब वाला काम अपने हाथ च लै लिया, चिंता करना। गुरबाणी कहती ना कर चिंत, चिंता है करते, हर देवे जल थल जनता सब ते, अचिंत दान दे पर मेरा विच पाथर कीट फखानी है। वह बंदिया तू चिंता ना कर, तेरी चिंता चिंता परमात्मा नूं है। चिंता थिसी है उस परमात्मा नूं तेरी चिंता है, तू चिंता ना कर, किसी दी चिंता ना कर। तू अपने उस परमात्मा के चिंतन विच जुड़ के अपनी जिंदगी की ड्यूटी नूं कर। सानू जो गुरबाणी ने मार्ग दिता है, नाम जपो, किरत करो, वंड के छको, ये साडी जिंदगी की ड्यूटी है। गुरबाणी सानू चिंता तो रहत जिंदगी बतीत करने की प्रेरणा करती है। मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसका दिया रहे अगाए, बौल ना तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानो के किसना ही याद। जो जो गुरबाणी दे इन्हां बचनां नूं समझांगे, अमल करांगे, त्यों तो साडी सुरत दा भार हौला हुंदा जाएगा। हुण सुरत नूं भार काहदा है? बड़ी सोहनी गल किसी ने कही, कहण लगा मैं देखिया कि बंदा मरिया पानी दे उपर तर रहा है। सोचिया कि शरीर का तो कोई भार नहीं, भार तो दिमाग विच सी, वो निकल गया तो बंदा तरना शुरू हो गया। देखो ना, जीवंदा बंदा डुबदा है, मरिया बंदा तर जाता है। वो कहता फिर मैं सोचा कि शरीर का कोई भार नहीं है, भार तो सुरत विच सी, वो हंकार सी जिहड़ा जां होर चिंतावां सन, वो सन डुबण का कारण। दरअसल जदों सुरत विच चिंता होएगी, सुरत च बुराइयां होणगियां, अवगुण होणगे, मैल होएगी, फिर तो डूबांगे। डूबे जिन सिर भार। पर हौले कदों होवांगे, परम गति कदों होएगी? जो जो गुरबाणी नाल जुड़ांगे, जो जो गुरबाणी नूं पढ़ांगे। सतगुरु जी ने सानू गुरबाणी इसे बक करके बख्शिश कीती सी कि बाणी पढ़दियां असीं एक परमात्मा दे प्यार विच जुड़ीए। बाणी पढ़दियां असीं मानवता च एकता दी गल करिए। जे बाणी दे नां ते भी असीं वंडे रहे, माफ करना, ये फिर दीवे थले नहीं रही है। इदों वध की कह सकते हैं? इदों वध बदकिस्मती की हो सकती कि पढ़िए गुरबाणी ते फिर धड़ियां च वंडे जाइए। पढ़िए बाणी
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਝਗੜੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਪਾਦਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਫੁਲਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਥਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਨ ਜਗ 70 ਸਵੇ ਅਵਲੋਕ ਚੱਪੇਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਫਿਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ